ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 6 ध्यान योगा text 36. असम्यातात्मना योगो दुष्प्रभा इति मे मति। वास्यात्मना तु यत्ताता साख्यो वाप्तुम् उपायता। असाम्यात्मना योगो दुष्प्रापा इति मे मति। वस्यात्मना तु तयत्तात साख्यो वाप्तुम् उपायतः। असाम्यात्मना योगो दुष्प्रपा इति मे मति। वस्यात्मना तु यथार्था साख्यो वक्तुम् उपायतः। Yes, read the shloka. भाविका आप पढ़ो. Read the shloka. असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्त इति मे मति। वस्यात्मना तु यतत शक्यो वाप्तुम् उपायतः। Next पूजा श्लोका पढ़ो. असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति। वस्यात्मना तु यतता शक्यो वक्तुम् उपायतः। ब्रजवल्लभी देवी दासी. Who is this? अरे आता है। हाँ, ये नाम क्या रखा है आपने? नहीं वो मेरा नहीं है एक्चुअली यार, वो क्लास लेनी पड़ती है ना, तो वो माता जी का ही मुझको जूम पे लॉगिन करा हुआ है। ओके ओके ओके, चलो तो पढ़ो पढ़ो. वो सेटिंग चेंज हुई थी। Go ahead. Nice, your initiative now. अरे नहीं माता जी। Okay, go ahead. अस्य मातात्मना योगो दुष्प्रापी इति मे मति। वश्य आत्मा तो यथाता साख्यो वक्तुम् उपायता। माता जी एक चीज बोलूं? हाँ जी बोलो. यस मतलब जी, आज ना हम सर के यहाँ प्रोग्राम में गए थे, तो अपना फोन बुलाई थी और यू विल शॉक, मुझे अब भी जस्ट फोन मिला है। मैं बस प्रे कर रही थी कि मुझे भगवद गीता क्लास अटेंड करनी और जस्ट मुझे फोन मिला है अपना वापस। हरी बोल. Arrange everything, mother. I was reading today one book. I will show you. This is a मेरी भगवद गीता की book. एक सेकेंड था. I'm reading one book. This is by Giriraj Maharaj, Watering the Seed. इस book में, this is a very wonderful book. It was gifted by some devotee to me. इस किताब में it was mentioned that we don't have to find for a guru. हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है. If we are sincere, guru is already there. We just have to recognize him. And recognizing it comes when we are sincere in our devotional practices. So हमारे गुरु खुद ही recognize हो जाते हैं and we are able to understand who will be our guru. So that is a very wonderful book. I will share some other time what I was reading in this. So वो कभी और share करूँगी. But this is what. So similarly, the point I wanted to make, when we are sincere, so Krishna make all arrangements. We don't have to worry. ठीक है. बस हमें अपनी sincerity show करनी है. Okay. So that is there. Uma, आप श्लोका पढ़ पाओगे? Would you able to read the shloka? Yes, Uma. Maybe not. Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. For one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work. But he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. एक इसका ओपिनियन है, अभी भगवान का ओपिनियन है. कृष्ण इज टेलिंग दैट थिंग. हम लोगों ने कल जो देखा था टॉपिक हार्ट ऑफ माइंड हार्डनेसिंग, उसमें भी यही देखा था, अगर जिसका मन कंट्रोल होता है, it becomes very easy for him because he has a peaceful mind, cool headed, nice intelligence, he can make the decision properly, है ना. तो उसी प्रकार से जिसका मन जो तो कंट्रोल नहीं है, आत्म साक्षात्कार बहुत ही मुश्किल कार्य है, मगर जिसका कंट्रोल है उसके लिए सक्सेस जरूर होनी ही होनी है. ठीक है. So
That is my opinion. That is what Krishna is declaring. So I will read out the purport. The Supreme Personality of Godhead declares that one who does not accept the proper treatment to detach the mind from material engagement can hardly achieve success in self-realization. अब अगर आपको कोई बीमारी है, ठीक है, like suppose you are going through very hardcore बीमारी, hardcore disease, and doctor prescribe you certain diet and certain prescription कि you have to follow, आपको कुछ परहेज रखना पड़ेगा कुछ समय के लिए, then only you are able to cure or get rid of this disease. Then what had happened? So क्या होता है उस समय में like the person like detachment का process तो है, like वही चीज अब हमें भी बोला गया है कि engage in devotional service and chant the holy names, you will be detached. अब इस संदर्भ में मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रही, बट whatever I remember I will try to recall it. एक बार एक राजा होता है, वो बहुत ही आसक्त होता है, मतलब अपनी पत्नियों से, he was so lusty, means he was कि अब राजा है तो ऑब्वियसली उसके पास बहुत सुविधा होता है विमेंस के साथ एंजॉय करने का, ऐशो आराम की जिंदगी है. सो वन सेंट जो होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था भागवतम में कि द सेजेस आर ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग गुड फॉर जनरल मास, तो उनके अच्छे के लिए दे ट्राई टू डू सर्टेन थिंग्स, यज्ञ करते हैं, कुछ करते हैं, प्रीच करते हैं. तो उसी प्रकार से वन सेंट विजिटेड दिस किंग एंड दिस किंग वाज लाइक, बोला कि ये जो संत है ना, बोला ये तो बहुत ज्यादा इंग्रोल्ड है सेंस ग्रेटिफिकेशन में, ही इज वेरी लस्टी आफ्टर द वीमेंस एंड ऑल. सो क्या होता है, ही वाज एक्चुअली, एक दिन क्या हुआ, एक बार ये जो राजा था ये बीमार पड़ जाता है, तो कई वैद्य आते हैं, पता नहीं कर पाते क्या बीमारी है. तो देन फाइनली दिस सेंट केम एज अ वैद्य, ठीक है, वैद्य बन के आते, वैद्य का रूप लेके, साधु नो हाउ टू कट द नोट्स. सो ही केम एज एन वैद्य. तो उनको बोलते हैं देखो आपकी जो बीमारी है, आप 1 महीने के अंदर मरने वाले हो, ठीक है, सो आपका कुछ हो नहीं सकता है, यू आर गोइंग टू डाई इन 1 मंथ. सो मैं आपको अगर ये दवाई जो है ये पियो तो शायद फर्क पड़ जाए, बट चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट रहेगा. तो उन्होंने एक सोने के पता नहीं लोटे लिए थे 2, तो उसमें आधी दवाई खुद पीते थे, खुद उनको देते, कुछ तो करते थे. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट स्टोरी, बट आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट आई एम एबल टू. तो ऐसा हुआ, तो अब क्या हुआ, जो व्यक्ति मरने वाला होता है वो धीरे धीरे उसमें डिटैचमेंट अपने आप ही आ जाती है, ना तो किसी चीज में मन लगता है, ना तो राजपाट में मन लग रहा था, ना अपनी पत्नियों में. तो उसकी अपने आप ये जो लस्ट की बीमारी थी चली गई, अचानक से जाने लगी. तो उसमें, और एक्चुअली ये जो वेद था उसने बोला था कि अपनी किसी भी स्त्री के साथ संभोग मत करना, मतलब डोंट बी इन कनेक्शन विद द वीमेन, लाइक उनके साथ इतना संभोग या ऐसे में नहीं रहना. तो ही फॉलोड अप. तो अब जैसे 1 महीना हो गया तो राजा तो मरा नहीं, तो राजा को लगा यार मतलब शायद दवाई कार्य कर गई है, मैं बच गया हूँ या कुछ ऐसा हुआ. तो ये वेद आते हैं तो कहते हैं कि किंग नाउ इज योर डिजीज इज गॉन. बोला हाँ, मतलब ठीक, बोला कि मैं तो जिंदा ही हूँ, मतलब मरा नहीं, और मेरे को तो अब इतना मैंने एसोसिएट भी नहीं किया वीमेन के साथ, ये वो. तो मुझे एग्जैक्ट स्टोरी नहीं याद है, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपेंड, बट आई वांटेड टू मेक इट. बाद में क्या होता है एक्चुअली, ये जो राजा है, जो भी मतलब he realizes, वो उनको रियलाइज होता है कि दिस इज द एक्चुअली मुझे कोई बीमारी नहीं थी, कि वैद्य ने मुझे ऐसा बोला था कि जस्ट टू कट ऑफ माय अटैचमेंट्स, ठीक है. तो उस तरह से था. आई माइट बी एबल टू कॉल आउट द स्टोरी एग्जैक्ट, मुझे याद तो नहीं है, मुझे एग्जैक्ट याद ही नहीं आ रही है क्या स्टोरी था ये, मतलब इट इज काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टोरी वाज देयर. तो दैट इज द सेंट समटाइम डज सर्टेन थिंग्स टू कट ऑफ अटैचमेंट्स. तो देखो झूठी बोल के उनकी आसक्ति को थोड़ा दूर किया, so he was able to follow up whenever death went. So actually the later on the king understood and he left the kingdom in the hands of some other people and he went to do some devotional activities. So उस तरीके से था. इस संदर्भ में ऐसे बहुत सारी स्टोरीज आई कैन टेल, मगर ये स्टोरी आई वांटेड टू टेल बट मुझे एग्जैक्ट याद ही नहीं आ रही है, बट चलो जो भी है, इसमें मतलब यही था कि if we follow up, अगर हम लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो विरक्ति हमें आ सकती है, but if we don't follow up, so it's very difficult to control our habits or activity or discipline ourselves. इसीलिए क्या कहा जाता है, हमें शिष्य बनना चाहिए. इंग्लिश में कहा जाता है ना डिसाइपल बनना चाहिए. तो डिसाइपल का क्या मतलब होता है, डिसिप्लिन. तो एक डिसिप्लिन आता है लाइफ में. सो डिसाइपल मतलब जो गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, ठीक है. तो इसी प्रकार से जैसे एक फिजिशियन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, हम फॉलो करेंगे तो हमारी बीमारी ठीक हो सकती है. तो उसी प्रकार से वी हैव टू फॉलो दी कृष्णा's instruction और गुरु's instruction that can help us to control over our mind. क्या लिखा है,
Trying to practice yoga while engaging the mind in material enjoyment is like trying to ignite a fire while pouring water on it. तो इसी प्रकार से जैसे आप भक्ति कर रहे हो अभी, मगर साथ में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भी रख रही हो, तो वो किस हिसाब से होगा? एक तरफ से आग लगा रहे हो और ऊपर से पानी भी डाल रहे हो, तो क्या वो आग जलेगी? नहीं जलेगी, है ना? तो उसी तरह से जब आप भक्ति करते हो तो इंद्र तृप्ति की तरफ मत देखो. ओके, tendencies are there, but try to engage yourself in devotional services, then those tendencies will go away, but don't try to involve. ये तो वही आ गया, आग लगाई और पानी डाल दिया, तो ऐसा नहीं करना. वही बोले कि जब योगा प्रैक्टिस कर रहे हो मगर मन तो आपका मेडिटेट कर रहा है इंद्र तृप्ति में, वो गलत हो जाएगा, है ना? सो योगा प्रैक्टिस विदाउट मेंटल कंट्रोल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो योगा कोई भी प्रैक्टिस है अगर मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं है तो इट्स सिंपली श्रमाय वाले केवल यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम. Such a show of yogi may be materially lucrative, but it is useless as far as spiritual realization is concerned. तो ऐसा योगी में भी मटेरियली काफी लोगों को पसंद है, फेमस हो जाए, मगर स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए तो इट इज सिंपली अ शो बॉटम. इट्स सिंपली यूजलेस. यू आर नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस एनीवेयर. तो उसी प्रकार से हमें शो ऑफ डिवोटी नहीं बनना है. वी जस्ट डोंट हैव टू थिंक लाइक अ डिवोटी, वी हैव टू एक्ट लाइक अ डिवोटी. ठीक है, ये नहीं कि कंठी तिलक जपमाला ले लिया, धोती कुर्ता पहन ली, साड़ी पहन ली, माता जी प्रभु जी हम तो बहुत अच्छे भक्त हैं, मगर अंदर से तो भक्तों वाली मेंटेलिटी नहीं है आपकी, भौतिकवादियों वाली है. तो यू आर सिंपली कली चेला. आप कौन हो फिर? कली चेला हो, आप भक्त नहीं हो. ठीक है, तो हमें कली चेला नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है. तो अंदर से हमें क्लीनिंग करना है. तो उसके लिए वी हैव टू चैंट द होली नेम्स रेगुलरली. वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स, वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सीनियर वैष्णवस एंड गुरु. ठीक है. Therefore, one must control the mind by engaging it constantly in the transcendental loving service of the Lord. तो मन को नियंत्रण कैसे किया जाएगा? कल भी हम लोगों ने पढ़ा था. That is by engaging in devotional services. There are many devotional services, either book distribution, cooking, cleaning, writing, painting, anything for Lord you can do. That way you can engage your mind transcendental loving service of the Lord. So unless one is engaged in Krishna consciousness, he cannot steadily control the mind. तो जब तक आप भक्ति में नहीं हो, मन को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है. A Krishna conscious person easily achieves the result of yoga practice without separate endeavor, but a yoga practitioner cannot achieve success without becoming Krishna conscious. क्या बोला है? This line is very important. A Krishna conscious person easily achieves the result of yoga practice without separate endeavor, but a yoga practitioner cannot achieve success without becoming Krishna conscious. ठीक है, कि जो एक भक्त है वो जितने भी योगा से जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो आप कृष्ण कॉन्शियस में लगोगे अपने आप मिल जाएगा, आपको सेपरेटली कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और उसी प्रकार मगर जो योगी है, ठीक है, जो योगा प्रैक्टिस है, जैसे कोई ध्यान योगा करेगा, अष्टांग योगा करेगा, उसका जो बेनिफिट है उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ही कैन नॉट अचीव द सक्सेस अनलेस ही बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस. ठीक है, अकेला योगी बन के आप नहीं ये परफेक्ट थिंग अटेन कर सकते हैं. द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम इज भक्ति योगा. ठीक है, तो जो भी नीचे के योगा है जब तक वो भक्ति योगा में नहीं आते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू अटेन द सक्सेस. दे हैव टू कम टू द भक्ति योगा, देन ओनली दे कैन अटेन द सक्सेस. ठीक है, so that is there. So best thing is to be Krishna conscious or conscious of Krishna all the time. We'll move to the next shloka. Now what is Arjuna saying? Arjuna uvacha आयाति श्रद्धयोपेतो योग चलिता मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं कम गतिं कृष्ण गच्छति. Translation, क्या बोला है? Arjuna said, "O Krishna, what is the destination of unsuccessful transcendentalist who is the beginning takes to the process of self-realization with faith, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism?" ये सवाल आप लोगों के मन में भी कभी आया हो कि हम लोगों ने भक्ति तो शुरू की है, अब क्या अगर हम लोग इसमें सक्सेस ना हो पाए या हम परफेक्शन ना अटेन कर पाए तो उसका क्या रिजल्ट होगा? ठीक है, यहाँ पे बोला कि अब जो अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, मतलब जो योगीज हैं जो भक्ति करने का प्रयास करते हैं, अगर किसी कारणवश पतन हो जाता है या फॉल डाउन हो जाता है तो ऐसे या भौतिक चीजों में लग जाता है तो उसका क्या होगा? Then does not attain perfection in mysticism. What is his? उसका क्या निकलता है? What does he attain? What is there? So क्या बोला जा रहा है? प्रभुपाद परफेक्ट में बता रहे हैं. The path of self-realization or mysticism is described in Bhagavad Gita. The basic principle of self-realization is knowledge that the living entity is not this material body, but that he is different from it, and that his happiness is in eternal life, bliss and knowledge. These are transcendental, beyond both body and mind. Self-realization is taught by path of knowledge, by practice of eightfold system or bhakti yoga.
In each of these process, one has to realize the constitutional position of living entity, his relationship with God, and activities whereby he can re-establish the lost link and achieve the highest perfectional stage of Krishna consciousness. चाहे आप अष्टांग योगा करो या भक्ति योगा करो, गोल तो अंतिम में क्या है, अपनी पोजीशन को जानना कि हम जीव आत्मा हैं और हमारा संबंध भगवान से क्या है, और उसी हिसाब से अपने संबंध को स्थापित करते हुए भगवान की सेवा करना है. That's how you can be attaining the perfection. ठीक है, चाहे वो कोई भी योगा सिस्टम आप अपनाओ. बाकी योगा सिस्टम अपनाओगे तो वो एक तरह से सीढ़ियां चढ़ने वाला हिसाब है. हम सीधा भक्ति योगा में तो वी आर टू द लिफ्ट. ठीक है, अब सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ रही अलग अलग. बाकी होंगे क्या, धीरे धीरे करके जब तक भक्ति योगा में नहीं आओगे यू आर नॉट एनीवेयर. ठीक है, सो दिस इज देयर. क्या बोला आगे, following any of the above mentioned three methods, one is sure to reach the supreme goal sooner or later. कि चाहे आप ध्यान योग करो, ज्ञान योग करो, ठीक है, या भक्ति योगा करो, sooner or later सब लोग भक्ति इसी में ही आएंगे. This was asserted by the Lord in the second chapter. Even a little endeavor on the transcendental path offers a great hope for deliverance. Now इसका मैं आपको बता दूं क्या बोला है. Even a little endeavor on the transcendental path offers a great hope for deliverance. कि अगर थोड़ी सी भी endeavor आप करते हो तो there is a great hope for you for deliverance. Out of these three methods, the path of bhakti yoga is especially suitable for this age because it is the most direct method of God realization. To be doubly assured, Arjuna is asking Lord Krishna to confirm his former statement. तो इसको एश्योर करने के लिए अर्जुन दोबारा भगवान को पूछ रहे कि सच में ऐसा है कि नहीं है, कि भक्ति योगा ही एक बात है कि नहीं. ऐसे तो ज्ञान योग, ध्यान योग भी है ना, कर्म योग भी है, मगर जो भक्ति योगा है, अब भक्ति योगा में क्या होता है, जिसमें आपको बता रही थी कि हमारा जो डिवोशनल अकाउंट होता है वो कभी खत्म नहीं होता. इट इज दैट अकाउंट दैट नेवर क्लोजेस. ठीक है, अब अगर किसी ने थोड़ी सी भी भक्ति की ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस जन्म में 1% भक्ति की है, तो अगले जन्म में ये कभी भी आप जब भक्ति रिज्यूम करोगे तो आप 1% से ही रिज्यूम करोगे. ये नहीं होगा कि आपका 1% खत्म हो गया, नो. अब बाकी योगा सिस्टम में क्या है, जैसे कोई ध्यान योगा जंगल चला जाएगा, अब उसका फॉल डाउन हो गया तो उसको बेचारे को स्टार्टिंग से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा. उसका ऐसा नहीं होता. ठीक है, मगर भक्ति योगा में क्या है, यू विल रिज्यूम फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट, दैट इज देयर. तो लॉस इज नथिंग बट ग्रेट इज, बट द गेन इज सो मच. तो ये भक्ति योगा का पाथ होता है. अगर आप परफेक्शन नहीं भी अटेन कर पाओ, स्टिल देयर इज नो लॉस. यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू अगेन टेक अप द प्रोसेस एंड रिज्यूम फ्रॉम वेयर यू हैव लेफ्ट. तो इसलिए मैंने बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति है उसका डिवोशनल अकाउंट खुलवाना है हमको. ठीक है, मे बी आप उसको प्रसादम खिलाइए, ये हरे कृष्ण ही बोल दे, सो उसका अकाउंट ओपन हो गया. अब वो कितनी प्रगति, उसमें कितना इंटरेस्ट आएगा वो तो उस पर निर्भर करेगा, वो कितना प्रयास कर रहा है. ठीक है, मगर वो लॉस नहीं है, ही हैज ओपनड अप, तो ही इज इनटू द प्रोसेस. ठीक है, सो आगे क्या बोला है, one may sincerely accept the path of self-realization, but the process of cultivation of knowledge and the practice of eightfold yoga system are generally very difficult for this. ये जैसे ज्ञान योग या अष्टांग योग एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है. कलयुग में जैसे बोला कि कलयुग की लोगों की एज कम है, डिस्टर्ब रहते हैं, तो कैसे ये सब फॉलो करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. देयरफॉर डिस्पाइट कांस्टेंट एंडेवर वन मे फेल फॉर मेनी रीजंस. तो इसीलिए अगर वो ये योगा सिस्टम प्रैक्टिस करेगा जैसे ज्ञान योग या अष्टांग योग, तो कितना भी प्रयास करे फेलियर होना ही होना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वन मे नॉट बी सफिशिएंटली सीरियस अबाउट फॉलोइंग द प्रोसेस. उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जो इतना हम लोग भक्ति में शायद इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो लोग को काफी स्ट्रिक्ट रूल होता है. To pursue the transcendental path is more or less to declare war on the illusory energy. और ये जो है प्रपात कहते हैं, like being in Krishna consciousness means declaring war against Maya. हम लोग माया के खिलाफ लड़ाई में खड़े हैं यहाँ पर. ठीक है, whenever a person tries to escape the clutches of illusory energy, she tries to defeat the practitioner by various allurements. हम जैसे जैसे भक्ति में बढ़ते हैं ना, आप देखोगे वैसे वैसे माया भी बड़ी सीरियस हो जाती है. हमारे सीरियस टेस्ट होते हैं चेक करने के लिए कि पक्का भक्त है कि नहीं. So there are like when we get serious, Maya also gets serious to check us. A conditioned soul is already allured by the modes of material energy. There is every chance of being allured again, even while performing transcendental disciplines. क्या बोला है? Conditioned soul is already allured by material modes of nature. अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग आए तो भौतिक जगत से ही है ना, तो ऑलरेडी हम लोगों में टेंडेंसी like we are so much engrossed with the Maya, you know. So हमारे पास दोबारा चांसेस होते हैं कि हम दोबारा allured हो जाए माया से, है ना. क्योंकि कई लोगों का प्रीवियस कंडीशनिंग होता है, जब वो प्रयास करते हैं भक्ति करने का, तो शायद कुछ समय तक तो बहुत अच्छा चलता है, फिर क्या होता है कुछ समय बाद उनको ना अपनी पुरानी प्रवृत्तियां दोबारा दिखनी शुरू हो जाती हैं. चाहे वो उसका रीजन ये होता है, राधा महाराज भी बता रहे थे, कहते कि फॉल डाउन के दो ही रीजन होते हैं. पहला
या तो लैक ऑफ साधना कि आपकी साधना अच्छी नहीं है, और दूसरा वैष्णव अपराध। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में हमें काफी सीरियस रहना चाहिए। वैष्णव अपराध तो कभी मत कीजिए, पूरी तरह बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। और कभी भी किसी वैष्णव के प्रति अपराध मत करो, निंदा मत करो, निंदा मत सुनो, ना तो सुनो, ना तो सुनाओ, ना तो करो। ठीक है, तो 3 मंदिर बन जाओ गांधी जी के। वैष्णवों के बारे में ना तो बुरा सुनना है, ना बोलना है, और ना ही बुरा कहना है, मतलब देखना भी नहीं है उनके प्रति ऐसे कुछ बुरा। तो वो नहीं हमें करना है, नहीं तो भक्ति बुरी तरह चली जाएगी। और अपनी साधना में भी कभी कैजुअल मत बनिए, अपनी साधना को बहुत सीरियस रखो। 16 माला तो कभी मत छोड़ना। जो जप होते हैं किसी भी हालत में कुछ भी छूटे, मगर माला ना छूटे। ठीक है, माला तो कभी नहीं छोड़नी है, अपनी जप नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। बिकॉज इफ यू लीव चैंटिंग, कोई अगर आज बोले चल कोई नहीं आज नहीं हुआ तो कल कर लेना, कोई नहीं 2 माला कम कर ले। जहां आप 2 माला कम करोगे, आपको 2 से 4, 4 से 16 से 8, 8 से 2, 2 से 1 में आने में समय नहीं लगेगा। तो कभी भी जितने भी माला आप करते हो, डू चैंट एवरी डे दैट नंबर रेगुलरली। ठीक है, तो कभी भी राउंड्स आप जितने कर रहे हो उससे कम मत करना, हमेशा बढ़ाने का प्रयास करना। देखो प्रभुपाद ने हमें 16 एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट 16 राउंड वी शुड चैंट रेगुलरली। ठीक है, अगर आप 16 नहीं कर रहे हो, अभी 10 कर रहे हो, तो 10 रेगुलरली करो, उससे कम मत करना। हमेशा बढ़ाने का प्रयास करना, मगर उससे कम मत करना। अभी 8 करो तो 8 रेगुलरली करो, उससे कम मत करो। ठीक है, टेक योर टाइम टू कम टू 16 इफ यू वांट टू टेक, बट मुश्किल नहीं है। 16 माला आप आराम से कर सकते हो। इट हार्डली टेक्स, नए नए अगर हो तो 1.25 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लग जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो 1.5 घंटा लगना शुरू हो जाएगा। बट 2 आवर्स वी शुड गिव टू कृष्णा, इजंट इट? 24 घंटों में से 2 घंटे भी भगवान को नहीं दे सकते। तो 16 माला इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, वी शुड चैंट। तो एटलीस्ट कुछ भी छूटे, मगर माला नहीं छोड़ना और भक्तों का संग नहीं छोड़ना। ठीक है, सो दैट इज देयर। तो एलियरमेंट्स बहुत सारी आएंगी, जैसे मैंने बोला कि प्रवृत्तियां हमारी एक्चुअली कंडीशनिंग बहुत डीप होती हैं। सो व्हाट हैपन, क्या होता है एक्चुअल में, तो व्हेन वी आर लाइक अनस्टेबल, थोड़ी देर प्रैक्टिस करते हैं, दोबारा ही हमारी वो कंडीशनिंग हमारे सामने आ जाती है, एंड वी माइट फॉल इनटू दोस कंडीशनिंग। मगर क्या करना है, दोबारा उठना है, प्रे करना है, बेग करना है। किसी भी हालत में अगर गिल्ट भी होता है किसी चीज का, बट डोंट लीव चैंटिंग द होली नेम्स। ठीक है, हमेशा टेक द शेल्टर ऑफ होली नेम्स, beg holy name. That says when you are down, get down in front of Prabhupada, in front of Shri Radha Krishna, and beg sincerely, then you will never fall. Okay, so किसी भी हालत में don't give away. और कभी कभी माया से एल्योर भी हो जाते हो, but still try to come back. Okay, never leave bhakti, never leave bhakti. अब देखो माया के साथ इतना समय हमने बिताया है, तो इतनी आसानी से तो छोड़ेगी भी नहीं ना। इतने मिलियंस ऑफ जन्म तो माया के साथ ही बिताए हैं, तो माया के इतनी आसानी से छोड़ देगी हमें? नहीं छोड़ेगी ना। तो मगर हमें क्या करना है, हमें भक्का बनना है। प्रभुपाद कहते हैं इट्स नॉट दैट माया इज स्ट्रांग, इट्स योर पर्पस इज वीक। अगर आपका पर्पस वीक है तो माया स्ट्रांग ही लगेगी। वैसे माया इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आपका पर्पस स्ट्रांग है तो माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इवन शी विल कम टू सर्व यू इफ यू विल बी वेरी सिंसियर, so she will not create any obstacle in your path, but she will help you to grow in bhakti, you know. So that we have to do. So this is called yoga chalita manasa, deviation from transcendental path. Arjuna is inquisitive to know the result of deviation from the path of self realization. तो इसका आंसर हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, because it is 8:26, so I would like to hear from all of you. So or maybe some questions I would like to take up. So in any situation, anytime, never give up chanting. ठीक है, even the Maya elements comes, so just pray to Krishna. ठीक है, मुझे आज याद आ रहा था हरिदास ठाकुर का, कि when the prostitute came to cheat हरिदास ठाकुर को, बोल रही थी कि enjoy करना है, ये करना है, तो हरिदास ठाकुर ने मना नहीं किया, बोला हाँ विल डू। अभी ना मेरे 2 माला रहती है, मतलब ये भी मेरे राउंड कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो ये हो जाता है तो फिर डेफिनेटली आई विल सेटिस्फाई यू। सो दैट्स हाउ वी हैव टू ट्रिक आवर माइंड, वी हैव टू ट्रिक आवर सेंसेस। हाँ पक्का विल ईट, विल गो आउट, डोंट वरी, बट let me finish up my 2 rounds, or maybe finish up this service, then we will definitely do. So that's how we have to trick our mind, but don't get allured by maya. Okay, कभी ऐसा लगे कि माया में जा रहे हैं तो immediately भक्तों को ढूंढो, उनका संग लो। Whenever you feel that you are not growing well, so immediately try to find a devotee and just go and stay with them and take their association, learn from them. That's we have to do. Even I do the same thing. कभी भी मुझे लगता है कि कभी अच्छे से नहीं हो पा रहा है भक्ति, या उत्साह कम लग रहा है, so I try to find some devotees. I either invite them at my home, or either I go at their place. Then I do some kirtan, do some study of Bhagavatam. We read some discussion. That really helps. So regularly hearing रखिए, regularly chanting रखिए. Don't give up your sadhana में कभी कमी मत आने दो. You will never lose your enthusiasm. Okay? So पहली बात तो ये गिरने वाली, fall down वाली सिचुएशन नहीं लानी है, और अगर कभी ऐसा लग भी रहा है तो भक्तों की शरण लो. Never leave the association of devotees.
कभी कहते हैं अगर आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है, अब बोलो अब क्या जरूरत है भक्तों की, आई डोंट नीड एसोसिएशन, ये वहम है आपका, आप गिर जाओगे। अगर आपकी साधना अच्छी नहीं चल रही है, अगर आप में इच्छा है कि भक्तों का संग करना है, तो मजाल है कि आप गिरोगे, कभी भी नहीं, क्योंकि भक्त बचा लेते हैं। सो वी हैव टू नेवर गिव अप, ठीक है, और नेवर फील बैड अबाउट इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट। ट्राई नेवर क्राई, मतलब कभी गिव अप नहीं करना है, इन द सेंस ऑलवेज बेग टू कृष्णा, बेग होली नेम, बेग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, एंड दैट्स व्हाट यू विल डू। तो तभी मैंने बोला जितने राउंड्स कर रहे हो एटलीस्ट कीप डूइंग देम, नेवर गिव अप, ओके। और कभी किसी दिन माला बिना किए तो रहना नहीं, ठीक है। एवरी डे यू शुड चैंट, देयर इज नो रीजन टू गिव अप चैंटिंग द होली नेम्स। वही बात आ गई, स्ट्रगलिंग इन चैंटिंग इज स्टिल गुड देन स्ट्रगलिंग इन mother's womb. Okay, so yes, so anybody have any questions or comments, so please go ahead. Yes, we have lots of time today, so you can open up and can ask anything you like. So बहुत समय है, तो आप आराम से सवाल पूछ सकते हैं और can share also. So Uma, if you cannot speak, so you can type it out, and other persons, other devotees, please do speak up. Yes, you have all opportunity right now to speak up, clear up your all doubts. Or one more thing, don't keep anything in your heart. कुछ भी अगर लगता है, कोई doubt आता है, तो immediately do inquire and clarify about it. Okay? Now, otherwise you might be ended up doing something wrong. So बेहतर है कि आप उसको clear करो. Yes. Anyone who is going to speak up first? Yes, पूजा माता जी, आपका कोई प्रश्न है या कुछ पूछना चाहें आप? नहीं माता जी, अभी तो नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं आ रहा है? कितनी माला कर रहे हो आप? कर तो मतलब अभी 10-12 ऐसा हो रहा है, मतलब डाउन। 10 और 12 वही मैं क्यों हो सोच रहा है? रही या तो 12 करो या तो 10 करो, वैसे कम नहीं करनी चाहिए। 16 क्यों नहीं कर रहे हो आप? जी 4 माले तो कम रह गई आपकी। माता जी मेरे को लग रहा है वही कि मतलब 12 पे ही कांस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ, फिर मैं कोई उससे बात नहीं माता मतलब जी, 16 करो, अपने आप कांस्टेंट आ जाएगा। द मोर यू चैंट, मोर यू आर एन्चेंटेड। नहीं, 16 माला में तो जी गला भी नहीं अभी तो, मतलब होठ भी नहीं गीले होते। हाँ? क्या बात कर रहे हो आप? ये तो चिढ़वा रही है। तो डू चैंट, नहीं है ना? जी माता जी। देखो अभी तो जबर जी सेशन भी आ रहे हो, तो ट्राई टू वेक अप लिटिल अर्ली, यू कैन डू 16 राउंड्स। पर एक बार करने लगोगे ना, आई गारंटी यू विल नेवर एबल टू डू इट। नहीं मतलब हाँ, जब से 6:30 उठते हो, 6 बजे उठते हो, तो फिर से कंप्लीट हो जाता है, 12 राउंड से कंप्लीट हो जाता है आराम से। और 4 राउंड शाम को कर लो। हाँ ये हो सकता है। कर सकते हो ना, ब्रेक्स में भी तो कर सकते हो, जरूरी है ना, अगर एक गो में नहीं हो पा रहा है तो ब्रेक्स में कर लो। जी तो डू चैंट 16 राउंड्स एवरी डे नाउ, ओके? जी Okay. I'll try. Yes, next is Bhavika. Do you have anything? No, Mataji, no questions. No question. How many rounds you are chanting? I still have to chant now. Huh? 8 rounds? Yes? Chant regularly and do send the reports in group also. Okay? Yes. Yes. Uma is chanting 16 rounds. Yes, आस्था माता जी, आपको कुछ कहना है? बहुत समय आज हमारे पास। ब्रजवल्लभी देवी दासी माता जी। Yes, आस्था. Anything? आवाज नहीं आ रहा आपका आस्था? हरि बोल। आस्था आवाज नहीं आ रही है बच्चे। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ माता जी, मैं कह रही थी वो मेरा नाम नहीं। हाँ, नहीं, आई अंडरस्टैंड दिस, मेरा डोंट वरी। हाँ यस यस यस, मैं भी वही मतलब माता जी टुडे इट वाज फुल पैक्ड, मतलब बहुत अच्छा दिन था आज मेरा। मतलब हमारा उमा भी थे, तो बहुत अच्छा दिन था। उमा थी, तेजस्विनी भी थी, घर के भी लोग भी थे। मैं वही सोचो, दूसरी लड़की का नाम मुझे भूल ही गया था कि क्या नाम था। आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, नाउ आई जस्ट रिमेम्बर तेजस्विनी। यस यस एक्चुअली यू नो सर है ना, सर वहाँ पे हमारे यहाँ टेम्पल से प्रभु जी आए हुए हैं। हाँ हाँ सुमोहन चैतन्य प्रभु, यस okay. सुमोहन चैतन्य प्रभु जी आए हुए हैं। तो वो सर के घर पे ही रुके हुए, तो वो 5-6 दिन से आए हुए, तो हमारे एरिया में ही प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे पता नहीं था।
ओह तो आज हाँ, पर मुझे बताया ही नहीं सर ने, तो फिर वो बुरा लगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर अब आज प्रोग्राम रखा हुआ था, फ्रोजी आए हुए थे ना, तो वही, तो बिल्कुल फुल फ्लेज्ड लेक्चर एंड प्रसादम, एंड फिर क्लासेस थी। तो फिर बहुत बहुत अच्छा लगा माता जी ऐसे, क्योंकि ना जैसे रोज जी ने लेक्चर दिया प्रभुपाद की जर्नी में, मतलब प्रभुपाद के बारे में ही सबको इंट्रोड्यूस किया, इस्कॉन से इंट्रोड्यूस किया हम्म प्रसाद में। तो मतलब एक सेवा भी मिली माता जी, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर नहीं वो पराठा वगैरह बनाने की, यस, पराठा वगैरह बनाने की सेवा दी गई। बहुत अच्छा लगा, वो तो बहुत अच्छा इधर भी लगा माता जी भेजने थे सेवा पराठे, करके। आप खुद ही खा गए। आपको नहीं पता इधर भी भक्तगण बैठे हैं। नहीं माता जी, ऐसी माता जी, फिर आप हम भी तो चलते हैं ना रोज आपको देख देख के, फिर कभी कभी हमें भी तो चलाने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप अब बस कुछ देखिए, दिनों बाद मैं दोबारा केक आप बस पूछने देख। वाली हूँ। देन आई विल टेक यू। यस, हाँ, तो बहुत अच्छा लगा माता जी, उसमें इट्स भी गुड, फिर यू नो, व्हेनेवर वी आर एक्चुअली इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज दैट इज वेरी इनलाइनिंग, वो बहुत अच्छा लगता है, दैट्स वेरी नाइस। यस, टेक अपॉर्चुनिटी और ऑफ इवन एसोसिएशन, यस, डू द यस, सर्विसेज। यस, और इवन माता जी फिर उसके बाद कुछ नए स्टूडेंट्स आए, तो उनको भी प्रीच करने का मौका दिया, मतलब मुझे सर ने ना बिठा दिया, प्लीज गर्ल्स थे वो लोग ना, जाए तो वो जाए। गर्ल्स थे, तो उन्होंने बिठा दिया मुझे, कहते अब सुनो, तो उनका पूरा 1-2 घंटा सुनाया, तो कहते हाँ, फिर कहते नाउ आई विल स्टार्ट चैंटिंग एंड रीडिंग प्रॉपर बुक्स, लाइक ओके यस। दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा माता जी, फिर मतलब यस, It's भक्त very nice. Whenever एसोसिएशन we कितना have the स्ट्रांग है। association of devotees, that really help us a lot. So that is very nice. That's so nice. So happy to hear you that you are getting such an association and opportunity. So जब भी आपको मौका मिले, please go and take association of devotees. So यस माता जी, some ऑलवेज। services that will really help you and enlighten you. तो वो जरूर कीजिए, ठीक है? So that will keep you grow in your bhakti. So always do that thing. Okay? Remain back up in the association of devotees. So भक्तों के संग में यस, back up रहो, कभी भी फॉल डाउन वाली बात नहीं आएगी, माया की एलिमेंट नहीं आएगी, ठीक है? So okay, so if no questions, so I'll be ending up here, and tomorrow we'll see. Tomorrow is Monday. Okay, माता जी, फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, फीलिंग बैड सीइंग दिस ऑल डे, और साधना भी स्लो डाउन हो जाती है, व्हाट कैन आई डू? उमा माता जी, ओके, देखो, प्रॉब्लम्स हैं उमा, इट विल कम इन द लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? हमारी किसी की भी लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। अभी कुछ दिनों से यू डोंट इमेजिन, बट आई वाज आल्सो लिटिल डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, इट वाज नथिंग द फैमिली प्रॉब्लम, बट समथिंग विद सम, कभी डिवोटीज के साथ में आपस में भी थोड़ा हो जाता है कभी कभी, सो समटाइम इट हैपेंस, सो कभी डिस्टर्बेंस हो जाती है थोड़ी बहुत, बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, वो हमें और समय मिलता है कि हम भगवान की शरण ले सके, that we can take refuge on Krishna when we have some problems, feel like no one there to help me, only Krishna. Okay, so कभी ऐसी प्रॉब्लम आती, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ माता जी, इट विल गो ऑन, कभी इधर का उधर का, इट माइट हैपन, बट ऑल द टाइम व्हाट यू हैव टू डू, सीक द शेल्टर ऑफ कृष्णा, ठीक है? किसी भी सेंस में डोंट गेट अल्योर्ड, ये भी एक माया ही है, ठीक है? ये भी माया है कि आपको साधना में स्लो कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा होने में तो हमें तो और ज्यादा भगवान की शरण लेनी चाहिए। यू नो व्हाट कुंती महारानी प्रेज, भगवान और दुख दे दो, आपकी याद आती है, मीन्स दुख में, लाइक आई वाज एबल टू रिमेम्बर यू, यू नो, कि सुख में तो भगवान को याद करते नहीं, तो कहते दुख आ रहे हैं, आई वाज एबल टू रिमेम्बर यू, गिव मी मोर कैलेमिटीज, बट वी कांट इमिटेट कुंती माता जी, सो हम लोग तो कैलेमिटीज नहीं मांग सकते हैं, बट दिस इज माय ओन रियलाइजेशन as Uma, that whenever we are into the difficulty, we find no person around us, only Krishna, and then we can pray to him sincerely. तो उस समय तो ज्यादा वो होता है, आई कैन फील कि चैंटिंग में नहीं हो पाएगा, यहाँ से डिस्ट्रैक्शन रहेंगी, बट यू कैन बेग, यू कैन क्राई सिंसियरली एट दैट टाइम, एक वो अच्छी सिचुएशन हो जाती है कि आप सिंसियरली अपने हृदय से रो पाते हो भगवान के लिए, उनसे प्रे कर पाते हो, तो जस्ट प्रे टू हिम सिंसियरली इन दोस। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर टेम्परेरी, मटेरियल नेचर जो है वो टेम्परेरी है ना, तो प्रॉब्लम कैसे परमानेंट रह सकती है? नहीं रह सकती ना, तो कुछ समय बाद वो भी चली जाएगी, बट जस्ट वी हैव टू टॉलरेट इट, ठीक है? अब जैसे भी सर्दियां हैं, तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, आज तो थोड़ा मौसम ठीक था, बट बहुत ज्यादा ठंडी है, तो क्या करें हम, ठंड को लेके मर जाएं? सुबह ना उठे, मंगल आरती ना करें, हाँ, या जप ना करें, नहीं उठा जाओ तो बड़ी ठंडी है, बड़ी ठंडी है, वी हैव टू टॉलरेट द विंटर, इजंट इट?
वी हैव टू टॉलरेट. अभी कल परसों लाइट नहीं था, मैं ठंडे पानी से नहाई हूँ सुबह. अब मंगल आरती कैसे मिस करनी है? आई टुक शावर इन कोल्ड वाटर. व्हाट टू डू? यू कांट डू मच. इतना समय भी नहीं होता सुबह कि आप गैस पे गर्म करो, ये करो, उतना कहाँ समय होता है सुबह, इतने जल्दी भागदौड़ लगी होती है. सो वी हैव टू टॉलरेट द विंटर. अब गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों में भी जब तो करनी है ना. लाइट नहीं होता पूरा पूरा दिन, गर्मी में बुरी हालत हो जाती है, क्या करोगे? बट वी हैव टू टॉलरेट द समर, द विंटर, द डिस्ट्रेस एंड हैप्पी मोमेंट, ऑल वी हैव टू टॉलरेट. और कोई तरीका नहीं है. दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्परेरी, दीज थिंग्स विल कम एंड गो, बट जस्ट बी टॉलरेट एंड कीप द पेशेंस, कीप गोइंग विद द प्रोसेस. ठीक है? नहीं हो पा रहा है, जस्ट ट्राई टू मेडिटेट, ट्राई बेग कृष्णा. ये तो एक अच्छी सिचुएशन बन जाती है बेग करने की. सो दैट वे यू कैन डील आउट. ओके, don't make your problem much bigger. Tell your problem who is your side. Krishna is your side. Okay, so the problem will not disturb you. So just try to take shelter of Krishna. I can understand it might the little disturbance comes, but just tolerate them. Okay, this is the only solution we can do. There is nothing else. Okay, Uma Mataji, is it fine? This is what I can tell. So why we have to tolerate up summer, winter, we tolerate. So tolerate these problems also. This is part of life because this material world is dukhalam, full of problems. So they will come. We can't do much, but uh, they will go also because their nature is temporary. We don't have to like stick with them. No, just okay, it's part of life. It will go away like that. Okay. Okay. Anything else? Or you see the question? Okay, if nothing, so let's chant 3 times Hare Krishna. We'll see you all tomorrow for Japa session at 6:30 and then Bhagavatam please. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kantra Shrivan Bhagavad Gita ki jai, Shri Krishna Arjun Samvad ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna everyone. See you all tomorrow. Hare Bol.